Hello, students. Welcome back to our channel. So, whether you are a beginner or looking to refresh your knowledge, this is your cup of tea. So, let's get started. Today, we'll do Act 1, Scene 2. So, first, let's discuss what we had seen in Act 1, Scene 1. We see that there are three witches who arrive at a place and they meet with each other, discuss a little things, and then again they plan to meet after the battle ends. And that's it we saw in Act 1. Let's move on to Act 1, Scene 2. Okay. In Act 1, Scene 2, we will see a sergeant. Sergeant is a soldier who has just returned from the battlefield and he will explain King Duncan about whatever he saw in the battlefield. And after listening to the sergeant, Duncan feels very elated and happy. So, after listening to the sergeant, Duncan feels very happy and he further announces that he will reward Macbeth and Banquo for their bravery in the warfield. So, okay. Here is Act 1, Scene 2 of Macbeth. Alarms. What is alarm? Alarms are the drums that are beaten for the king are entering. Okay. Other attendants. Here we have Malcolm, Donalbain, Lennox with attendants meeting a bleeding sergeant. So Duncan is the king over here, Malcolm is the elder son, Donalbain is younger son, Lennox is Scottish soldier and bleeding sergeant is a wounded soldier. और यहाँ पे किंग डनकन से स्टार्ट होता है तो फिर से एक बार बोल देते हैं अलार्म जो भी साउंड्स बजाए जाते हैं जब राजा लोग अपने प्रजा के साथ एंटर करते हैं जगह पे वहां पे मैलकॉम जो कि उनका बड़ा बेटा होता है, डोनाल्डबेन उनका छोटा बेटा होता है, लेनॉक्स एक सोल्जर है, स्कॉटिश वही सोल्जर है और अदर सोल्जर्स भी आ रहे हैं। इसके साथ यहाँ पे वो लोग मीट करते हैं इसको एक ब्लीडिंग सर्जन। ब्लीडिंग का मतलब है यहाँ पे वुंडेड सर्जन, उसको घाव लगी है, चोट लगी है, इसलिए ब्लीडिंग सर्जन। Why? Because he has just returned from the battlefield. So King Duncan, what bloody man is that? He can report. This wounded person can tell us, as seemed by his plight, about the battle because it seems from his blood stains, from his wounds or the pains that he has arrived from the battle. So he can tell us about the newest state. Okay, newest state यहाँ पे क्या है? Latest news. Okay, latest news किस चीज के बारे में? Latest news हमारे वारफील्ड के बारे में, अभी तक कहाँ तक प्रोग्रेस हुआ है वारफील्ड में, वही सब के लिए न्यूएस्ट स्टेट। ओके, यहाँ पे हम लोग मैलकॉम देखेंगे, वो एल्डर सन है, मतलब बड़ा बेटा ऑफ डनकन। दिस इज सर्जेंट हु लाइक अ गुड हार्डी सोल्जर फॉट against my captivity. Hail brave friend, say to the king the knowledge of the broil as thou did leave it. ये सर्जेंट है, ये बहुत ही ब्रेवली फाइट किया है और मुझे बचाया है कैप्चर होने से। बताओ किंग को कि कैसे तुमने वारफील्ड में मुझे बचाया। जब तुमने वो वारफील्ड छोड़ा तब उसकी क्या हालत थी। ठीक है, सो एड्रेसिंग हिम एज अ ब्रेव, करेजियस एंड हार्ड, he says that since he fought with great strength to prevent Malcolm from being captured by enemy soldier. Okay, and here he says, now here he asks him to narrate to the king whatever happened in the battlefield in brief and the way he left the battlefield. फिर यहाँ पे चलेंगे sergeant. Sergeant is a soldier. Doubtful it stood. वो थोड़ा डाउटफुल था, उसे पता नहीं था अभी कहाँ से क्या शुरू किया जाए, क्या बताया जाए। He was a little doubtful and confused also. He says, as two spent swimmers that do cling together and choke their wrath the mercy and choke their wrath. Okay, यहाँ पे वो दो कंपैरिजन कर रहा है स्विमर्स के बीच में और दो आर्मी के बीच में। That like a tired swimmers who lie upon each other, not letting each other to perform, वैसे ही ये दोनों ही आर्मीज जो थी
वो एक दूसरे पे ऐसे हावी हो चुकी थी जैसे वो एक दूसरे को परफॉर्म भी नहीं करने दे रही थी। ठीक है, यहाँ पे वो फर्दर बोलता है कि द मर्सीलेस मैकडोनल्ड, यहाँ पे मैकडोनल्ड जो है वो उनका ओपोनेंट है। ठीक है, यहाँ पे मैकडोनल्ड है ओपोनेंट, जो कि एनिमी है, ये एनिमी का रोल प्ले करेगा यहाँ पे। Worthy to be a rebel, for to that multiplying villains of nature do swarm upon him from the western isles. Now do swarm upon him. ये दुश्मन के ही लायक है, क्योंकि इसमें दुश्मनी वाले कैरेक्टर्स जो है बहुत ही कूट कूट के भरा हुआ है। So he says Macdonald is supposed to be an enemy because of his inbuilt natural villainous characters, which fits him very well. Okay? He further says, from the western isles of Kerns and Galloglasses is supplied, and fortune on his damn coral smiling. उसने अपने साथ वेस्टर्न आइल से, मतलब वेस्टर्न आइलैंड से सोल्जर्स लाए हैं, वेपन्स लाया है, और साथ ही साथ वो फॉर्चून भी लेके आया है अपने साथ। फॉर्चून का मतलब क्या बोलना चाहते हैं वो लोग? लक। ओके, they wanted to mean that luck was also smiling on him, damn quarrel smiling on him as if he wore it, जैसे कि वो लक भी पहन के आया था। तो सोल्जर्स वेपन्स वेस्टर्न आइलैंड से लेके आया था, और वो लक भी अपने साथ लेके आया था, जैसे मानो कि वो पहन के आया था लक। ठीक है, अब यहाँ पे बट ऑल टू वीक, बट सब कुछ फीका रह गया, कमजोर रह गया, किसके सामने? फॉर ब्रेव मैकबेथ, मैकबेथ जो ब्रेव था उसके सामने ये उसके सोल्जर्स, उसके वेपन्स और उसका लक सब कुछ फीका रह गया। मतलब कि Macbeth was a brave soldier and he fought bravely. He defended everything, the soldier, weapons and the luck. Okay? Fell weak in front of brave Macbeth. Now disdaining fortune with his bandaged steel. Disdaining fortune, unworthy luck, with his bandaged steel, which smoked with bloody execution. Bandaged steel is the sword of Macbeth, okay? Smoked means was blood soaked. With execution means the number of people he killed in the battlefield, because of which this sword of Macbeth was smoked with blood, okay? Filled with blood. Blood से एकदम लथपथ था उसका तलवार, क्योंकि मैकबेथ ने इतने आदमी मारे, इतने सोल्जर्स ही मारे थे, इसलिए like Valor minion carved out his passage till he faced the slave. जब तक कि उन लोगों को उसने हरा नहीं दिया, till he faced slave मतलब वही हराना, डिफीट नहीं कर दिया, तब तक वो फाइट करते रहे। ठीक है, नियर शुक हैंड विच नियर शुक हैंड्स नॉर बिड फेयरवेल टू हिम, मतलब नीडर शुक हैंड्स और बिड फेयरवेल बिफोर ही वाज स्प्लिट। यहाँ पे मैकबेथ ने उसे कुछ भी समय नहीं दिया हैंडशेक करने का, या फिर गुड बाय या फिर फेयरवेल बिड करने का। उसने पहले ही उसे पकड़ के मार दिया, स्प्लिट कर दिया, कट कर दिया बीच से एकदम, फ्रॉम नेव टू चैप, दैट इज फ्रॉम बेली टू जॉ, एकदम काट दिया उसको, और यहीं पे वो मारा जाता है। ठीक है, एंड फिक्स हिज हेड अपॉन आवर बैटलमेंट्स, और उसके सर को एकदम दीवार पे पटक दिया, एंड बैंग हिज हेड ऑन द वॉल। ओके, ओ वेलियंट कजन किंग डंकन, वर्दी जेंटलमैन, तुम बहुत ही ब्रेव हो, really worthy, you deserve it. Sergeant, as whence the sun glints his reflection, shipwrecking storms and direful thunder break. जब हमें सन के रिफ्लेक्शन को देख के लगता है कि we are feeling warmth, it's so nice and comforting, but सनशाइन के बाद उसमें शिपरेक भी हो सकता है, थंडर भी आ सकता है, स्टॉर्म्स भी आ सकते हैं। ठीक है, वैसे ही हमें वो बोलता है जैसे स्प्रिंग आता है हमें बहुत कंफर्टिंग लगता है, बट वहाँ पे डिस्कम्फर्ट भी स्वेल होता है, स्वेल मतलब बढ़ता है, स्वेल डिस्कम्फर्ट भी आता है। तो वैसे ही सन्स रिफ्लेक्शन गिव अस वार्मथ सीम्स कंफर्टिंग, बट दैट टू कैन ब्रिंग casualties like thunder, shipwrecking and storm. And similarly he compares this situation with the war field, okay? Because they thought that they had won the war after defeating one enemy, one group of soldiers, but they had no idea that there was another set of soldiers coming towards them. Okay,
No sooner justice had, with valor armed, compelled these skipping currents to trust their heels. So no sooner did we defeat Irish soldiers than another set of army or troop of soldiers came with loaded weapons, arms and ammunitions. ठीक है, तो वहां पे उन्होंने जैसे ही एक आर्मी को मार गिराया, दूसरा आर्मी अपने सोल्जर्स और वेपन्स के साथ चलाया. बट द नॉर्वेजियन लॉर्ड सर्विंग वेंटेज, यहाँ पे नॉर्वेगियन लॉर्ड ने लेके आया था, मतलब नॉर्वेगियन की किंग ने वो आर्मी लेके आया था. ठीक है, नॉर्वेगियन लॉर्ड मतलब वो किंग आर्मी लेके आया था. बट फर्बिश्ड आर्म्स विथ न्यू सप्लाईज ऑफ मेन बिगन फ्रेश अटॉल. फर्बिश्ड आर्म्स एक नए बंदूक, नए आर्म्स, नए वेपन्स विथ सप्लाईज of men began a fresh assault. Another fresh revolt from the Norwegian king started. King Duncan, dismayed not this, did this create trouble or problem to our captains? Now Macbeth King Duncan पूछता है, our captain Macbeth and Banquo, क्या मैकबेथ और बैंको को तकलीफ हुई दूसरे ग्रुप सोल्जर से? तो सर्जन बोलता है हाँ तकलीफ तो हुई. Now he is little sarcastic or criticizing the enemy. He says that yes, हाँ हुई, बट छोटे छोटे चिड़ियों की तरह, रैबिट्स की तरह, जो लायन के सामने तो कुछ भी नहीं है. तो वैसे ही he says that comparing this enemy soldiers to small creatures fighting with Macbeth, जो कि मैकबेथ को यहाँ पे समझो लायन बताया है, तो मैकबेथ के सामने वो सारे स्पैरोज और ईगल्स की तरह थे. ठीक है, इफ आई सूद आई मस्ट रिपोर्ट दे वर एज कैनॉन्स ओवरचार्ज्ड विद डबल एनर्जी. या फिर मैं ठीक से बताऊं तो वो लोग ओवरलोड कैनॉन्स वगैरह, बंदूक वगैरह एकदम डबल लोड होके आए थे. क्योंकि देखो मैकबेथ का जो आर्मी था वो तो पहले ही एक बैटल फाइट कर चुका है, उनकी एनर्जी ऑफकोर्स उनसे हाफ होगी. तो अगर उन्हें इस आर्मी से फाइट करना होता या फिर होगा तो उन्हें ऑफकोर्स और भी डबल स्ट्रेंथ के साथ फाइट करना होगा. ठीक है, क्योंकि ये आर्मी तो फुल स्ट्रेंथ के साथ आई हुई है यहाँ पे, और वो लोग तो अभी एक आर्मी को मार ही गिराए हैं अभी तुरंत ही, और अनदर सेट ऑफ चले हैं. सो दे डबली रीडबल स्ट्रोक्स अपॉन द फोई. दे हैड टू फाइट विद डबल स्ट्रेंथ वेलर एनर्जी विद दिस आर्मी. ये कौन बोल रहा है? मैकबेथ के तरफ से सर्जन बोलेगा हम लोग को और भी ज्यादा स्ट्रेंथ और एनर्जी के साथ फाइट करना हुआ ये सेकेंड वाले आर्मी के साथ. एक्सेप्ट दे मेंट टू बेड इन सीकिंग वुड्स, बट उन लोगों को सिर्फ हम मार ही खाए. वो लोग, उन लोगों ने कुछ हम पे वार वैसा कर नहीं पाए. सो बट द एनिमीज रिसीव्ड ओनली वुंड्स, उन्हें सिर्फ जख्म ही मिले, वो हम लोग के साथ खड़ा नहीं हो पाए. और मेमोराइज अनादर गोलगोथा, यहाँ पे मेमोराइज अनादर गोलगोथा क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो एक गोलगोथा उनके हिस्ट्री में एक ऐसा वॉर है, ऐसा रिवोल्ट है जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं. बहुत ही ब्रूटल वार है, वहाँ पे बार्बरिटी के साथ, बहुत ही क्रूरता के साथ लोगों को मारा जाता है. और उसी रिवोल्ट को याद करने पे मजबूर हो जाते हैं ये लोग. मतलब मैकबेथ के साथ जो वॉर हुआ है अभी, वो वॉर को देख के, इतना ब्रूटलिटी, इतना मैसिव अटैक और बार्बरिटी, इस वायलेंस भी इस वॉर में देख के वो लोग डर जाते हैं. सो दे आर बाउंड टू रिमेम्बर अनदर गोलगोथा war. But I failed. My gashes cry for help. After seeing all this, Sergeant fainted and cried out of pain. ठीक है? King Duncan, so well thy words become thee as thy wounds. Your words speak of your bravery and also Macbeth and Banquo. So यहाँ पे डनकन बोलते तुम्हारे बातों से लग रहा है तुमने कितना ब्रेवली फाइट किया होगा वॉरफील्ड में. दिस मैक ऑफ ऑनर बोथ, गो गेट हिम सर्जेंट. वो दोनों ही, मतलब यहाँ पे बैंको और मैकबेथ की बात करें, दोनों ही डिजर्व करते हैं ऑनर या फिर रिवॉर्ड, जो कि उन्होंने जो ब्रेवरी दिखाया उसके लिए. जाओ, जाके अपने आप को एक पहले डॉक्टर दिखा लो. गो सी आर डॉक्टर मैलकॉम. द वर्दी थेनोफ्रॉस, यहाँ पे थेनोफ्रॉस और एंगस जो है ये एंटर कर रहे थे. दैट इज द रीजन मैलकॉम बोलता है worthy Thenophros. Lennox, what a haste look through his eyes. We should he look. That seems to speak things strange. It seems that he is in a hurry from his looks. He has something strange to narrate.
which means that यहाँ पे वो इतने जल्दबाजी में आ रहा था रॉस, तो उसको देख के लेनॉक्स बोल पड़े कि इसको देख के लग रहा है कि ये बहुत ही जल्दबाजी में है, इसको कुछ बताना है। यहाँ पे रॉस आता है, रॉस गॉड सेव द किंग बोलते बोलते वो घुसता है, ठीक है। किंग डनकन, whence comes the worthy thing? Actually, King Duncan is asking Ross, from where are you coming, worthy thing? Ross, from five great king. That he says, Ross replies to King Duncan that he is arriving from the place five. तो फाइव, ये फाइव नहीं है, ये फाइव एक जगह का नाम है, ठीक है। लेट मी राइट इट वंस मोर फॉर यू ऑल। Okay. Where the Norwegian banner flout the sky and fan our people cold. Norway himself, assisted by that most disloyal traitor. यहाँ पे वो कहाँ से आ रहा है? वो नॉर्वेगियन फ्लैग जहाँ पे फ्लाउट होता है, जहाँ पे नॉर्वे का फ्लैग रहता है, जहाँ पे नॉर्वे का रूल चलता है। Where they assault, terrify our people, जहाँ पे वो हमारे लोगों पे अत्याचार करते हैं, मैं वहाँ से आ रहा हूँ। तो नंबर 1 जहाँ पे नॉर्वे का फ्लैग जो है उड़ता है, नंबर 2 जहाँ पे उनके लोगों पर असॉल्ट होता है, और नंबर 3 बोलता है कि वही नॉर्वेगियन लॉर्ड ने हेल्प किया है इस बैटल में इस कॉर्डर ट्रेटर को, ठीक है। मतलब दूसरे सेट ऑफ आर्मी जो आया था वो नॉर्वे की तरफ से आया था इस कॉर्डर को हेल्प करने के लिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं। The Thane of Cawdor began a dismal conflict till that Bellona's bridegroom lapped in proof. यहाँ पे Bellona over here is a brave woman who kills the enemies like splitting them, and Bellona का हस्बैंड यहाँ पे किसको बताया गया है? मैकबेथ को। तो मैकबेथ को इस ब्रेव लेडी के हस्बैंड बता के इंट्रोड्यूस किया गया है कि मैकबेथ ने बेलोना के हस्बैंड की तरह लोगों को मार गिराया। तो मैकबेथ भी बहुत ही ब्रेवली विथ ऑल आर्म्स गेव हिज अ टफ ओपोनेंट, एक टफ ओपोनेंट की तरह प्रूव किया अपने आप को उस बैटलफील्ड में, और इसीलिए इसको बेलोना के हस्बैंड के साथ कंपैरिजन एक बार कर दिया यहाँ पे, ठीक है। Confronted him with self-comparisons, but point against point, rebellious arms against arms, curbing his lavish spirit to conclude the victory of Fellonas. तो हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से फाइट किया। He fought bravely. Without there is no comparison between us, our army, and their enemy's army. And he says, for sword against sword, we fought for arms against arms. We proved to be a tough opponent and curbed the enemy soldiers, and we won. Victory fell on us, matlab we won until we won. Now, great happiness. King Duncan, after listening to all these, he says that I'm really very happy. Ross says that's now Sweden, the Norwegian king, craves composition. He says that Norwegian king begs for peace treaty now. And the Macbeth's army has refused burial of the enemy soldiers. Second, pay war compensation of $10,000. And third, also retreat. Retreat मतलब वापस जाओ, retreat, move back to St. Combs. तो वार होने के बाद ये बोलता है कि अभी स्वीनो नॉर्वेगियन किंग जो है वो अभी कॉम्पोजिशन मांग रहा है, मतलब पीस ट्रीटी मांग रहा है, ठीक है। नंबर 1, इन लोगों ने उसे कुछ भी नहीं दिया, रादर उनके जो सोल्जर्स थे उन लोगों को ब्यूरियल भी अलाउ नहीं किया, और सेकंड उन्होंने वार कंपेंसेशन में $10,000 मांगे हैं। कौन? मैकबेथ की आर्मी ने ये सब मांगा है, ठीक है। ब्यूरियल डिनाई कर दिया, $10,000 मांगा है, और थर्ड ये भी बोला है कि सेंट कौन इंग तक तुम लोग वापस भी चले जाओ, इतने दूर क्यों आए हो तुम लोग, अब वापस जाओ, रिट्रीट, मूव बैक, पीछे हटो, ठीक है। कहाँ तक? ये सेंट कोल इंक इंच, ओके। नाउ यहाँ पे किंग डनकन आफ्टर लिसनिंग टू ऑल दिस, नो मोर द थेन ऑफ कॉर्डर शैल डिसीव। अब वो कॉर्डर जो है वो अब हमें
धोखेबाजी नहीं करेगा हमारे साथ. So now Kaurav will never ever dare to deceive us. Our bosom interest हमारे कोई भी काम में दखल अंदाजी अब नहीं करेगा. Go pronounce his present death. जाके बताओ वो मर चुका है. Go announce his death. And with his former title greet Macbeth. और उसके जो टाइटल है वो जाके दे दो. किसको? मैकबेथ को. कि अब वो मर चुका है तो इसलिए उसका अच्छा कॉर्डर जो है वो मरा नहीं है. एक्चुअली किंग डनकन इज प्लानिंग टू अनाउंस दैट ही विल बी हैंग्ड. रस आई सी डन, मैं देखता हूँ ये सब हो जाएगा. किंग डनकन वी हैड व्हाट ही हैड लॉस्ट नोबल मैकबेथ हैड वॉन. व्हाट थेन ऑफ कॉर्डर हैज लॉस्ट मैकबेथ हैज वॉन. तो थेन ऑफ कॉर्डर जो है जो उसने खोया है मैकबेथ वो जीत के लाया है. तो थेन ऑफ कॉर्डर ने क्या खोया? अपना नाम खोया, नेम, दैट रेपुटेशन, अपना किंगडम खोया है. जो किसको मिल गया? यहाँ पे हमारे मैकबेथ को ये सारी चीजें मिल गई. और जब ये लाइन लास्ट में किंग डनकन बोलता है एट द एंड ऑफ द सीन, यहाँ पे ये लाइन is setting a tone for the rest of the play and also creating a suspense in the audience. Audience में एक suspense बरकरार है अभी भी और एक लाइन है जो कि इसी पे proceed होगा हमारा next scenes. Okay, so that's it in this scene. Thank you.